Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। So we'll be reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 2nd. Maharaj Nimi meets the 9 Yogendras. Text number 29. The title of this chapter is Maharaj Nimi meets the 9 Yogendras. So all of you quite regular in this Bhagavatam classes, correct? No one is new. Huh? Yes or no? So everyone knows Bhagavad Gita also. Huh? How many of you read Bhagavad Gita? At least one. Going on. What about you, Prabhu? You read Bhagavad Gita? Fully? Okay. So, Maharaj Nimi meets 9 Yogendras. Who is Maharaj Nimi? So, Maharaj Nimi is the son of Ikshvaku.
So in which chapter this name comes? In which chapter of Bhagavad Gita? Ikshvaku. Which chapter? Fourth chapter. Okay. Which shloka? What is the shloka? Then recite the shloka. But recite the shloka. It is 1-2 words, one line. Okay, who was Ikshvaku? Who was the father of Ikshvaku? Manu. Who was the father of Manu? Nice. So what is the shloka? Imam vivasvate yogam. No one remembers. Anyone from online? Someone can recite shloka 4.1 without seeing Bhagavad Gita. No one is there. See, we are sitting in Bhagavatam class. We must know Bhagavad Gita. This is the important shloka. Imam vivasvate yogam prokshavanaham avyayam vivasman manave praha manodiksh vakave david. So this fourth chapter of Bhagavad Gita is transcendental knowledge. Lord Krishna says, Imam vivasvate yogam. Lord Krishna, he speaks this knowledge to whom? Vivasvan. And then Vivasvan means sun god. Who is Vivasvan? Sun god. So you imagine, you calculate, when did Krishna speak this knowledge of Bhagavad Gita to Vivasvan? When? How many years ago? Huh? Vivasvan, sun god, means at the very beginning of the creation of this universe. Correct, na? Sun came into existence when? In the beginning of the creation. So that time, Lord Krishna spoke this Bhagavad Gita to Vivasvan, sun god. Then sun god, he gave this knowledge to whom? His son, Manu. Then Manu gave to Ikshvaku. And then Ikshvaku gave this knowledge to his son. This is Parampara. So here, this name Maharaj Nimi. So Maharaj Nimi was the son of Ikshvaku. So he is meeting 9 Yogendras. Who are 9 Yogendras? The son of Rishabhdev. In 5th canto of Bhagavatam, Rishabhdev, is giving very important lessons to his own sons. Rishabhdev was having how many sons? 108 sons. Then out of 108 sons, one was Bharat Maharaj. And Bharat Maharaj was the great king. On his name only this land is known as Bharat. Anyway, so Maharaj Nimi is meeting with 9 Yogendras and he is asking very important questions. Because whenever we meet a Vaishnava devotee, we should inquire always. There is one shloka in Bhagavad Gita, Tadvidhi Pranipatena Pariprashnena Sevaya. There should be question always. But what kind of question? When I will get my job? When will I get married? Huh? Not this kind of question. Questions for self-realization. So here, Maharaj Nimi, he says, Durlabho manusho deho dehinam kshanabhangurah tatrapi durlabham manye vaikuntha priya darshanam. For the conditioned souls, the human body is most difficult to achieve and it can be lost at any moment.
दुर्लभो मानुषो देहो, means this human form is very very rare and it can be lost any moment. Dehinam chhana bhangurah. Dehinam means, yes, among the bodies, so many bodies we are getting. Every time we are getting new bodies. Every time whenever we commit some action, so as a result of reaction we get new body. We perform karma, what we get? For each and single karma, each and every single karma, what we get? What we are creating? A new body. So in a day, okay, 12 hours you are sleeping. Rest 12 hours, what are you doing? Every moment what we are doing? We are performing some action. And then what is the result? Some reaction will come out. So as a result, what will get? Next body. When? That we don't know. Not this next moment, but we'll get. We are creating something which will get in the future. That's why human body is karma yoni. Whatever we perform will get in future in the form of reaction, happiness or distress or suffering. Depends upon the quality of your karma. So it is mentioned, Dullabha Manusho Deho Dehinam. We are getting so many bodies. Dehinam Kshana Bhanguraha. Two words are there, Kshana and Bhangura. Kshana means, हम कहते हैं ना, we call it Kshan Pratikshan. Means, Kshana means temporary, for very short time. And then Bhanguraha. Bhangura means, हम कहते हैं ना भंगार हो गया. भंगार means, yes, not bankrupt. भंगार means कुछ काम का नहीं रह गया, यूजलेस या फिर खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला, पेरिशेबल. तो कैसी ये बॉडी है? दुर्लभ मानुष्य देहो देहिनाम क्षण भंगुर, टेम्पररी एंड perishable. Tatrapi durlabham manye. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. Tatrapi durlabham manye Vaikuntha priya darshanam. So Vaikuntha means, these all are simple questions. क्या कर रहे हैं आप लोग? Google series भागवतम क्लास. हाँ, जहाँ कुंठा न हो. जहाँ कुंठा ना हो. कुंठा means anxiety. yes, कुंठा means दुख, suffering, कष्ट, और जो भी आप शब्द ले लें जिससे आपको परेशानी होती हो, वो सब कुंठा के अंतर्गत आ जाएगा. तो वही कुंठ means without कुंठा, without suffering. There is a place where there is no suffering. कोई कष्ट नहीं है, कोई कुछ समस्या नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, कुछ बुढ़ापा नहीं है, केवल आनंद है. तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, तो ऐसा स्थान जहाँ पे सब नहीं है, जहाँ पे केवल आनंद है, वहां क्यों आनंद है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड हरि, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण. सो वैकुंठ प्रिय दर्शनम. तो ऐसे लोग जिनको वैकुंठ प्रिय है, या ऐसे लोग जिनको कृष्ण प्रिय है, या ऐसे लोग कृष्ण जिनको प्रिय हैं, या जिनको कृष्ण प्रिय मतलब पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों का अगर दर्शन हो जाए, ऐसे लोगों का अगर हमको एसोसिएशन मिल जाए, if we get the association of devotees, Vaishnavas, that human life is successful. So that is क्या कहते हैं? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम. Although human form
And even in that human form life, if we get the association of a devotee, it is mentioned, the association of devotee is very, very important. Sadhu Sangha, सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि है. Love means, huh? No, not that love. Love, इंग्लिश वाला लव भी नहीं. जैसे 1 सेकेंड होता है, तो सेकेंड को भी आप लगभग 8 भाग में डिवाइड कर दो. 1/8 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड इज, यस, इस संस्कृत टर्म है ये. तो हम कभी भी कहते हैं ना, हर घड़ी मतलब ये घड़ी नहीं, घड़ी मतलब वो भी एक यूनिट है मेजर करने की टाइम को. तो क्षण, पल, वैसे ही क्या है, लव मात्र साधु संग, 1/8 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड. That much association of a Vaishnava, of a sadhu, of a devotee is also very, very grateful, very, very important. Yes, Sanskrit word. Yes. So it is mentioned, he is saying, Maharaj Nimi is saying to Navayogendras, because these Navayogendras are great souls. So he is saying that Tatrapi Durlabham Manya, although I got this human form of life, which is temporary, any moment can go, temporary and bhanguraha. So for the conditioned souls, the human body is most difficult to achieve and it can be lost at any moment. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. What is the point is? Point is that we need to understand the importance of human form of life. That's why I gave this today's topic is emergency. Now or never. Because we know that much, that we have human form of life at present. In past, what was the condition we don't know. But scripture says, after passing through 8 billion species, we get human body. 80 लाख योनियों के बाद क्या मिलता है? मनुष्य शरीर हमको मिलता है. ये तो क्लियर है. तो बहुत ज्यादा ना है तो कम से कम 80 लाख योनियां, लेकिन उसमें भी ये क्लियर नहीं है. दैट इज नॉट क्लियर that how many years. In human life we have 100 years at least. Then some other species like trees. Recently we celebrated Kartik month, correct? We used to offer lamb to Lord Krishna, to Damodar. Why? The importance of this Damodar month was what? Because Lord Krishna, when he was a small boy, and then he delivered, he himself was bounded with the grinding mortar, and still in that situation he delivered whom? He delivered whom? Mother Yashoda. And Kuber's son. Kuber's son. Yes, he delivered the sons of Kuber. Who is Kuber? Lord of wealth. Treasurer of the demigod. Yes, he is the treasurer of demigod. देवताओं के मुंशी जी हैं. Treasurer of demigods. Those sons of Kuber. So anyway, we will not go into that pastime. So Lord Krishna, when the sons of Kuber got cursed by Narad Muni that you become a tree. So they both become tree. For how many years? अरे पूरा कार्तिक महीना निकल गया. आप में से कितने लोगों ने दीप दिखाया भगवान को? ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना? तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार भी नहीं पढ़ा या सुना? इट इज अ प्रॉब्लम. वी डू, जस्ट वी डू. दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिचुअल. तो फिर उसको वो स्पिरिचुअल कैसे होगा? तो रिचुअल रहेगा तो फिर रिचुअल ही रह जाएगा, बस करना है. फिर कहीं कोई पूछ लेगा तो हम ऐसे ही
उसको क्या आंसर देंगे? तो फिर हमको खुद को क्या लगेगा जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। एक तो पहले ही वो दिमाग में भर दिया है कि भाई वैसे ही जो भी वैदिक है वो तो माइथोलॉजी है, तो वैसे ही आधा दिमाग का ऐसा है कि सही नहीं है। फिर डेली कुछ किताबें जो पढ़ रहे हैं वो भी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं पास होने के लिए। तो जब इसको हम जानेंगे नहीं तो क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम बताइए? ये श्लोक तो पढ़ना दूर, हम तो ये देख के लग रहा है कि भाई कितनी इमरजेंसी है। इतना रेयर हमको चांस मिल रहा है इतना, and we don't know then what we'll do. तो वही यहाँ पे महाराज निमि, एटलीस्ट ही वाज able to understand the reality of the human form of life. That's why he's telling this thing, this durlabh manush deho. And even that, when you get the association of devotees, see, if you don't know anything, what do you ask? If a great Vaishnava comes in front of you, like there's one story. There was a few villagers, they went to forest to collect wood, dry wood. Why? So that they can cook their foods. Huh? So many people were there. Among them, one old lady was there. So at the time of sunset, so everyone left the forest, and then this old lady was in the last, and she was alone. And then she was carrying the bundle of a big bundle, a big bunch of the wood, and then somehow or other something happened, and then that bundle fell down. And then she was praying a lot, like anything. Means from the heart she prays. And then what happened? She called Govinda, Krishna, please come, please help me. So Krishna appeared mercifully, because she was old lady, no one was there. So Krishna appeared, and then Krishna says, okay mother, what can I do? What can I do? How can I serve you? Who is asking? Krishna, who is Mukunda. Mukunda means who can give mukti, who can give liberation, जो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है, वह सामने है। और वो क्या पूछ रहा है? हाउ मे आई सर्व यू। ऐसा फॉर्चून कहाँ मिलेगा? उस लेडी को मिला। उसने क्या पूछा होगा? उसने क्या पूछा होगा बताओ? मैंने पढ़ा है, she asked the Lord to simply pick the bundle up and put it on her head. और आप लोग क्या करते अगर होते तो? हाँ, सॉरी आप लोग नहीं, मैं भी उसी में ही हूँ। हम लोग क्या करते अगर होते तो? हम भी वही करते हैं। क्यों? क्यों? भाव तो बहुत दूर की बात है। हमको पता ही नहीं है हमारी स्थिति कैसी है, हमको पता नहीं, बिकॉज वी डोंट रीड स्क्रिप्चर्स, हम सुनते भी नहीं है। तो हियर हमको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दिस वेरी great chance, opportunity to hear about Krishna, to read about Krishna, to do some practice in the association of devotees. तो यहाँ पर तो निमि महाराज समझ रहे हैं उस रेयरिटी को, उस इमरजेंसी को। जैसे ऐसा कहते हैं, so जैसे अभी दीपावली गई, तो आप सपोज दीपावली पे आप क्रैकर्स जला रहे हो बाहर सड़क पे, बाजू में ही आपकी गाड़ी खड़ी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, समां उधर कोई एक रॉकेट आता है, या आप ही ने जो आपने जो क्रैकर जलाया हो सपोज वो उधर चले गया, तो क्या होगा? उसमें आग लग गई, फिर क्या करोगे आप? नहीं, कोशिश करेंगे, है ना? चलो वो तो गाड़ी थी, अब आग बजाय उस गाड़ी के घर में लग गई है, फिर क्या करोगे? हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? उतनी इमरजेंसी नहीं रहेगी ना, जितना गाड़ी का था। ठीक है, मैं बच रहा हूं और घर बच रहा है। अब यहाँ पे तो घर में आग लग रही है, तो भी कैसा रहेगा? एटलीस्ट मैं बच रहा हूं। कोशिश करेगा व्यक्ति, लेकिन जब आउट ऑफ लिमिट रहेगा तो क्या करेगा? अपने आप को तो बचाऊं। अब चलो कार को साइड में रखो, घर को साइड में रखो, वही रॉकेट या फ्लावर पॉट या कुछ भी ले लो आप, वो गलती से क्या हो गया? या कभी कभी कैसा होता है, कुछ लोग फ्लावर पॉट जो होता है अनार वो जलाते हैं, कभी कभी किसी भी कारण से मॉइस्चर की वजह से, या कभी होता है वो तुरंत
जलता नहीं है, और फिर उठा के देखते हो तुरंत जलता है। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये जो आईलिड्स है ना, ये मेरी जल गई थी, बच गया भगवान की कृपा से, बाकी कुछ हुआ नहीं। लेकिन सपोज ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ और सिर में आग लग गई है, अब क्या करोगे? लेकिन वो इमरजेंसी कैसी होगी? एकदम मतलब बुझाना ही है ना, किसी भी जाकर करके क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो उस समय आप जैसी नीड आपको पानी की होगी, जैसी इमरजेंसी आप पानी की फील करोगे, तो ऐसा कहते हैं कि वैसी ही तत्परता से, वैसे ही इमरजेंसी अलार्मिंग सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? जब मनुष्य शरीर मिल गया है तो हमको गुरु ढूंढना चाहिए, कोई एक वैष्णव ढूंढना चाहिए जो हमको क्या करे? गाइड करे कि क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ का, कैसे इसका हम सही लाभ ले सकते हैं। तो बात के शब्दों में कहें तो व्हाट इज अ गुड बार्गेन? हम बार्गेनिंग करते हैं ना, तो ये शरीर के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? तो क्या गुड बार्गेन होगा? जब तक अगर हम इसको उपयोग नहीं करते हैं, किसके बारे में जानने के लिए? भगवान के विषय में जानने के लिए। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। प्रहलाद महाराज कहते हैं पीपल दे डोंट नो आवर रियल बेनिफिट इज विष्णु। इफ वी टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा, विष्णु, दैट इज आवर रियल बेनिफिट। तो सिर में आपकी आग लगी है, उस समय जिस तत्परता से आप पानी ढूंढोगे, उस तत्परता से हमको क्या ढूंढना चाहिए? भगवान का भक्त। क्योंकि भगवान का भक्त जो है हमें भगवान के विषय में बता सकता है, और भगवान ही उनको भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो मैं कह रहा था कि हमको पिछला पता नहीं है, ठीक, अभी तो पता है कि हाँ एटलीस्ट नाउ आई हैव ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और समहाउ अदर जो भी मैंने कुछ क्या पता नहीं क्या हमने कुछ अच्छा किया होगा, नाउ वी हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, a great devotee, the founder Acharya of ISKCON. He gave all these scriptures in the English language so that everyone can understand. हालांकि इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती, फिर भी क्या लगता है, चलो इंग्लिश सब जगह वैल्यू है, तो he gave these scriptures in the English language. Now we have in more languages also, more international languages, but now we have in English language, everyone can understand. Everyone can read and understand. And of course, not by our own. Again, what we need? Some guidance. So those who are practicing in their association, we should read, we should ask. But if we don't read, what will we ask? So same thing, this Nimi Maharaj Nimi, he is telling, see, he is the king of the whole planet and he is asking. And what is our position in front of him? Who are we? कहाँ के हम राजा हैं? हाँ, राजा हैं? तो डरते क्या आप कह रहे हैं मैडम हम कहाँ राजा हैं? हाँ? We are nothing, but still see our ego. So purport, let's go with purport. According to Srila Sridhar Swami, the word Dehinam means Bahavo Deha Bhavanti Yesham Te, the conditioned souls who accept innumerable material bodies. How many bodies? Innumerable, because we don't know. So many times we got human body also, but still what we did? What did we do? We are sitting over here, that means we did not utilize it properly. But still, Krishna is so merciful. Some past activity we performed, now we are sitting here, we have a chance, we have got opportunity. So innumerable bodies. And I was telling about this Yamlarjun, they were three for 100 celestial years. That means 36,000 years in our calculation. देवताओं के 100 साल, हमारे 36,000 साल. तो उतने साल तक उनको पेड़ बनने के लिए बोल दिया गया था. सबसे ज्यादा सफरिंग किसमें है? When you are a tree, क्या करना पड़ता है? हम सभी लोग स्कूल से तो निकले हैं,
स्कूल में कभी कभी पनिशमेंट मिलता है, क्या मिलता है पनिशमेंट? हाँ, मुर्गा नहीं, सिंपली खड़े ही हो जाओ चेयर पे या क्लास के बाहर आप खड़े रहो बस। तो जो बदमाश होते हैं वो तो वही उसमें घूमने निकल जाते हैं, जो थोड़े सिंसियर होते हैं कि भाई पनिशमेंट मिली है अपने अच्छे के लिए तो दे स्टैंड सिंसियरली, अदरवाइज दोनों तरह के लोग होते हैं। तो उतनी देर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है? पैर दुखता है, हम कुछ ना कुछ एटलीस्ट हमारे पास मुंह है तो हम बात करते हैं, दो लोग अगर हैं तो। लेकिन ट्रीज कैसे हैं, कैसे खड़े हैं? दे कैन नॉट स्पीक। ठीक है, यमलार्जुन जो थे, चूंकि उनके ऊपर कृपा हुई थी नारद मुनि की, उनको श्राप किसने दिया था? नारद मुनि ने श्राप दिया था, और ये भी कहा था कि भाई 100 देवताओं के 100 साल बाद कृपा होगी, किसकी होगी? भगवान कृष्ण के आंगन में आप रहोगे। तो वो तो नारद मुनि का श्राप था, वो तो एक बेनेडिक्शन हो गया। लेकिन आपकी और हमारी स्थिति ऐसी नहीं रही होगी, ये तो कंफर्म है। और पक्का हम लोग पेड़ भी बने होंगे। और पेड़ कितना साल तक रहते हैं? 5000 साल तक बिना बोले बिना पहने बस आपको खड़े रहना है, वो भी केवल एक जगह पर। कैसा लगेगा? उससे ज्यादा सफरिंग कहाँ होगा? और तो वो भी हम बन चुके हैं, है ना? कितनी बार? डोंट नो। चलो नहीं लगता तो कम से कम एक बार तो बने होंगे, लेकिन 5000 साल। और क्या ऐसे एक ही पेड़ है क्या? कितनी सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स में भी, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं इनन्यूमरेबल बॉडीज, सो मेनी लाइफ टाइम्स वी हैव स्पेंट लाइक दिस ओनली। According to some wishful thinkers, a living entity in the human form of life will never be degraded to a lower form such as that of an animal or plant. But despite of this wishful thinking, it is a fact that according to our activities at the present, we will be elevated or degraded by the laws of God. So some people they think that we have human life. Suppose कहीं आग लगी है और उस घर में सपोज आग लगी या किसी जगह पे आग लगी है, वहां पे एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता, और एक लड़का है, मतलब लड़का मतलब एक जानवर है और एक मनुष्य का बच्चा है। तो किसको बचाया जाएगा? दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन दिया जाए तो किसको बचाया जाएगा? मनुष्य को। मतलब मनुष्य का जो शरीर है, जो ह्यूमन है, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ लोग, तो ह्यूमन बॉडी जो है सुपीरियर है, मतलब बहुत मिल रही है हमको, तो क्या होगा? कभी डिग्रेडेशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? हमेशा अच्छा ही कुछ होगा। क्या होगा? तो लोग कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे भी कुछ फिलोसोफर्स है ना जो क्या कहते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। या फिर ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जो जीसस को मानते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग जाएंगे। Doesn't matter if they commit so many sinful activities, doesn't matter. If they believe in Jesus, they will go to heaven. And those who does not believe in Jesus, they will go to hell. तो ये बात भी कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि डिग्रेडेशन नहीं होगा, हमको कभी मनुष्य शरीर मिला है तो वापस से क्या होगा? वापस से क्या अपग्रेड नहीं भी होगा तो क्या होगा? एटलीस्ट विल गेट अगेन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, again we'll get a chance to enjoy. Will not go into lowest form of life. No. Shastra says according to the nature of your action you will get another body. In Bhagavad Gita Krishna says, क्या कहते हैं भगवान? यो यो यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। At the time of death, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है वह वैसा शरीर प्राप्त करता है। सपोज someone who is meat eater, very much fond of non-veg, and at the time of death he is thinking about non-veg only. So which kind of body will he get? We can't say. But he is a meat eater, so he is not utilizing his human form of life. Your body is not to eat meat, so he will get some body in which he can enjoy meat
non-stop, unlimitedly, without cooking. In human, we have to cook. We cannot eat. Human cannot eat raw meat, so they need to cook it. But in animal form of life, suppose tiger or lion, they enjoy fresh blood. They enjoy fresh meat. So nature will give them that kind of body because they are misusing this human form of life, which is very, very rare. So no, it's not like that you will get always human life. You will be degraded according to the nature of your activities. So will be elevated or degraded by the laws of God. We can see, and in this world we see, suppose someone has committed some sinful activity. Someone breaks the law of the government. So he will be punished. He will be put into the prison house. And then if there he is acting very nicely, then he will be promoted. And if they is not acting nicely, he is misbehaving again inside the prison house. What will happen? Yes, more strictness. No, then police will put shackle in hands and legs. They tie him with chain, iron chain. So here we can see, then in laws of God there is no flaw. There is nothing like what we see here कि भाई यहाँ पे थोड़ा bribe दे दिया और काम हो गया, है ना? वहाँ पे ऐसा नहीं. At the present time in human society, there is no clear or precise understanding of the nature of life. Foolish scientists have invented highly sophisticated terminologies and theories to bluff innocent people into believing that life comes from chemical reactions. So this is another thing, another trap in front of us, that there is nothing called soul. You are a bag of chemical. Life comes from chemicals. So you enjoy the life, isn't it? So if we see all these theories, all these bogus philosophies, and you see so many people are accepting this. So what is what they will get at the end of life? What they will get means simply they are gonna waste their human form of life. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has exposed this bluff in his book Life Comes From Life. Because there is no evidence. Is there any evidence, single evidence, this life is coming from, coming out of chemical? So far, any evidence? There is no evidence, but still they are stick with that theory. Life comes from chemicals. Or they say everything is coming from nothing. Everything is coming from nothing. This kind of theory is also there. Then this theory that Darwin's theory also is there, and then this Big Bang creation, took place out of a big explosion. Is there any single evidence with explosion something creative happened? No. So which points out that although scientists claim that life comes from chemicals, they cannot produce so much as an insect, even from unlimited quantities of chemicals. Actually, life and consciousness are symptoms of the spirit soul. Even if there are so many chemicals, but someone who is living is required to mix those chemicals. A single chemical can do anything. Even if we see like H2O, so we need to mix it, na? Okay, two gases are there, but we need to mix it in a big quantity. So Prabhupada gave example. Okay, you know the formula, H2O, water. Then we have a vast ocean. Who mixed that? Who did that chemical reaction? Someone is required to do that, to perform that chemical reaction. So here, this sentence is
clear that actually life and consciousness are symptoms of the spirit soul. So whenever something is there, life or consciousness, that means there is the presence of spirit soul. There is one another story. In one house, someone died. Dead body was lying down on the ground, and everyone was crying like anything. And a small kid was there, and he asked, "Why everyone is crying? Why are you crying?" So then someone said, "Because he passed away." So he said, "Who passed away?" "Well, he passed away." So then that kid, he says, "Okay, someone you are telling he passed away. So you are crying. So by your crying, is he gonna come back?" They said no. So he said, a kid is saying, if by your crying, if he's gonna come, then you are not doing properly. Bring whole village and start crying. If by your crying, he's going to come back, so bring all the village together and then start crying. So then they said, no, this is not going to work. Then said, okay. That means by you are crying, he's not going to come. Then why you are crying? Stop crying. One part. Second part. Okay, you said he passed away. Who passed away? Well, he passed away. So he said, kid said that see, the person you are talking about, he passed away. He is still lying there on the ground. So they said, no, soul passed away. What did he say? If you are saying he passed away, so he is lying down on the ground, the body is there. Then who passed away? So they say soul. Then again he asked, you are talking about soul passed away. Means soul left the body. Have you ever seen the soul? Have you ever seen the soul? You are crying for. So you were knowing this person, you never seen the soul, you never experienced soul, and that person is still there. Then again, why are you crying? So point is that we never experience soul because we don't have knowledge. We consider ourselves as body, and to fulfill the demand of the body, we act. That's it. So we consider ourselves what? Body only. It is called देहात्मा बुद्धि. देह आत्मा मीन्स देह को आत्मा मतलब स्वयं मान लेना, इस प्रकार की बुद्धि है. तो जब भी यहां पे कह रहे हैं, जब भी कहीं भी लाइफ है या चेतना है, इसका मतलब किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट और सोल. तो शरीर में आत्मा है, लेकिन हम क्या समझते हैं? हमको पता ही नहीं है. हम अपने आप को शरीर माने हुए होते हैं, और शरीर के साथ जो संबंध होता है उसी में हम क्या रहते हैं? वी आर सो अटैच्ड विद दैट. लाइक जो रो रहे थे, किससे अटैच थे? अटैच थे बॉडी से. बॉडी सामने भी पड़ी थी, फिर भी रो रहे थे. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कनेक्शन है वो केवल बॉडी से नहीं है. किसके साथ है? सोल के साथ है. टू whom we love, with whom we shared our experience or enjoyments or anything with soul. क्योंकि मैटर में तो इमोशंस है ही नहीं. तो शरीर में आत्मा है, ये इसका प्रूफ है. हम समझ नहीं पा रहे ये किसकी कमी है? कि हमारी कमी है ना. जैसे हवा में एक प्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो प्लेन उड़ रहा है, तो छोटा बच्चा उसको अगर देखेगा तो क्या समझेगा? उसको क्या लगेगा? एक मशीन है जो हवा में उड़ रही है. तो ये क्या हो गया? उसके लिए तो मिस्टेक हो गया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है. किसका ज्ञान नहीं है? प्लेन का भी नहीं है और उसको उड़ाने वाले पायलट का भी नहीं है. इसलिए उसके लिए क्या हो गया? ये उसके लिए मैजिक हो गया, मिस्टेक हो गया. लेकिन आप और हम जब प्लेन देखते हैं तो हमको क्या लगता है? तुरंत एक कॉमन सेंस आता है ना कि भाई ये मशीन उड़ रही है तो इसको कोई ना दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो इसको
उड़ा रहा है ना। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं लेक्चर में, क्योंकि हमको जब तक ज्ञान नहीं है किसी चीज का, इसलिए हमको कुछ चीज क्या लगती है, मिस्टिक लगती है। जब कब तक लगती है, जब तक उसके विषय में ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे जब ज्ञान होता है तो कुछ भी मिस्टिक नहीं रह जाता। जैसे कहते हैं मिस्टिक योगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बाबा लोग, मतलब साधु जो काफी तपस्या उन्होंने की है, काफी प्रैक्टिस उन्होंने की है, योगा प्रैक्टिस, तो मुट्ठी बंद करेंगे, आपको बोलेंगे फूंक मारो, और फिर उसमें से कभी कुछ मूर्ति निकलती है, कभी कुछ लॉकेट निकलता है। देखा है आपने, सुना है? मैंने अनुभव भी किया है। व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, मैं स्कूल के लिए जा रहा था 10 बजे, और मैं घर से बाहर निकल गया था, और उसमें ज्यादा कुछ लोग नहीं थे उस पे आसपास। तो एक बाबा जी आए, तो बोले कुछ दो। अभी मैं तो स्कूल जाने के लिए जाने वाला था, मैं क्या दूंगा और छोटा बच्चा 5वीं क्लास का। तो तुम क्या स्कूल जा रहे हो? हाँ स्कूल जा रहे हैं। पढ़ाई करते हो ना? पढ़ाई करता हूँ। तो कहते हैं वो कि तुमको मैं गणेश जी की मूर्ति देता हूँ, तुम उसकी पूजा करना, तुम अच्छा विद्या में होगे। तो मैंने, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, फूंक मारो। ऐसे मुट्ठी तुरंत क्या फूंक मारो। ऐसे मैंने फूंक मारी, तो छोटी सी एक गणपति जी की, उसमें पीतल या क्या होगा, लेकिन येलो कलर की थी। तो पॉइंट ये है कि जो हमको पता नहीं, इसलिए उसको हम मिस्टिक बोलते हैं। लेकिन इस तरह की सिद्धियां जो है वो शास्त्र में बताई गई है। 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, सिद्धि। मतलब छोटे से छोटा हो जाना, पानी पे चलना, हवा में उड़ना। तो ये सब सिद्धियां हैं। एक जगह रह के कुछ दूसरी जगह से कुछ चीज ले आना, ये सब सिद्धियां हैं। तो अगर पता है तो क्या है, वो नॉलेज है। पता नहीं तब तक कैसा है, फिर वो हमारे लिए मिस्टिक रह जाता है। तो जो डिवोटी होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, उनके लिए कुछ भी मिस्टिक नहीं है, कुछ भी मिथ नहीं है ना, कुछ भी फैंटेसी नहीं है। दे नो द थिंग्स एज दे आर। तो ये हमको पता करना हमारा पहला कर्तव्य है। शास्त्र भी कहता है, वेदांत सूत्र, वेद अंत मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ वेद, मींस नॉलेज। अहम ब्रह्म अस्मि, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ये हम जाने। और फिर शास्त्र ये भी कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो, तो बात कहते हैं अतः मींस देयरफॉर। तो हम कब यूज करते हैं देयरफॉर? कब यूज करते हैं? कंक्लूड करने के लिए, या फिर हमने बहुत सारा प्रयास कर लिया किसी चीज के लिए, बहुत हताश हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, तब भी यूज करते हैं। या बहुत कुछ किया और कुछ रिजल्ट बताना है, तो इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन सो मेनी फॉर्म ऑफ लाइफ वी ट्राइड अ लॉट टू एंजॉय, isn't it? In every form of life we used to eat, sleep, having sex with opposite sex, and then some defense. हर प्रकार की लाइफ में हम ये करते हैं, और कितनी बार किया कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट नहीं है। Therefore you tried a lot but still you are not satisfied. अथातो, therefore ब्रह्म जिज्ञासा, now you inquire about the absolute truth. I am Brahma, who is Param Brahma. I am part and parcel of God. What is my relationship with God? Why am I suffering? मेरा हर प्रयास होता है आनंद के लिए, लेकिन दुख किधर से आ जा रहा है पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश के मौसम में कहीं सपोज किसी के यहाँ लीकेज है, छत में कुछ लीकेज है, वो उधर से बंद करता है, फिर कुछ लगाता है, फिर कुछ लगाता है, या कुछ ऊपर से प्लास्टिक लगा देता है। तो क्या होता है, कभी पानी इधर से आ जाता है, कभी उधर से आ जाता है, ऐसा होता है ना। या फिर मुंबई में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बिल्डिंग से इसमें खारा पानी है, या अच्छे पानी से जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो प्रॉपर उसका पानी नहीं डाला है, तो क्या होता है, पानी में वो लीकेज हो जाता है दीवार में। तो कहीं बनाते हैं वहां पे प्रॉपर उसको प्लास्टर करते हैं, तो भी कहीं और से लीकेज आ जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो जब तक उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगा, वो समस्या ऐसी रहेगी। तो वैसे ही हर प्रकार हमने पता नहीं कितनी बार ये सब ट्राई किया, बट स्टिल वी आर नॉट
We are not satisfied क्योंकि हमने वास्तविकता को कभी जाना ही नहीं, इसलिए अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। कोशिश कर रहे हैं सुख के लिए, फिर भी दुख आ रहा है, दुख के लिए एक बार भी प्रयास नहीं किया, कहां से आ जा रहा है पता नहीं। So now inquire about absolute truth. Who are you? Are you this body? Are you matter? Or you are spirit soul? So in human form of life, we get this rare opportunity to understand about Krishna, God, supreme soul, or absolute truth, whatever you call it. And then we are part and parcel of Krishna. That's why we are also spirit soul. So we have connection with Krishna. So the process by which we can reconnect ourselves with Krishna, that is religion, that is real dharma. धर्म क्या करता है? हमको और भगवान को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, पुल है। सिंपली हम बोलते हैं ये धर्म वो धर्म, उसके नाम पे झगड़ा होता है, कॉरल्स होते हैं, वो फाइट होती है, वो नहीं धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? जो आपको किसके साथ कनेक्ट करे। पुल क्या करता है? एक साइड को दूसरी साइड से क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो हम जाने who are we, who am I, who is Krishna, what is my connection with him, how to re-establish that connection, what is the goal of life. So अगर हम इन तरह की बोगस थ्योरीज में रहेंगे, then we will never be able to understand the goal of life. So now, that's why I mentioned now and never, or now or never. So it is now we have this human form of life. Okay, we are chanting, that's okay, very good. If we are not continuing this process, we stop in between, we break the process, or we are not sincere, so we'll get again human life. Okay, we'll get another time, next chance. But what is the guarantee? When will we get? So now at least we have this very good opportunity. We have association of devotees. We are giving some time, spending some time. So be sincere and read every day. Read Bhagavad Gita, Bhagavatam for a few minutes. Chant every day. Whatever questions you have, you ask. Whenever you come into temple, you ask with some senior devotees, those who are practicing. सबके सामने नहीं पूछ सकते हो तो अकेले में पूछो, बट पूछो, इंक्वायर करो, कुछ डाउट है तो उसको क्लियर करो, बट डोंट ब्लाइंडली रिजेक्ट दिस प्रोसेस, बिकॉज द किंग ऑफ द होल प्लैनेट ही इज showing the importance of this human form of life. So in this shloka, actually, the purport is very big. So one more shloka is there in the purport that we'll see. That how is the association of devotee is very important. Nideham adyam sulabham sudurlabham plavam sukalpam guru karnadharam mayanukule nabhasvateritam puman bhavabdhim na tare sa atmaha. The best of bodies, a human body, is a great attainment rarely achieved and may be compared to a boat. So this life is with a boat or vehicle, you can say. The Guru is an expert captain for this boat, and I have sent favorable winds, the Vedas. Thus I have given all facilities for crossing over the ocean of material existence. Any human being who has achieved these excellent facilities of human life but does not cross over the material ocean is to be considered the killer of his own self. The Supreme Lord said, so this shloka is given by, recited by the Supreme Personality of Godhead, by Krishna himself. He says, this human life is very, very, very rare. It's like a boat. It's like a boat and a guru. Guru means a Vaishnav.
A spiritual master is like a captain. Simply like if you get a boat, if you don't know, how to control the boat, then what will you do? You will end up with a mess. So what you need? A captain you are needed to ride a boat. So this life, this body is like a boat, and a Vaishnava, a devotee, a spiritual master is the captain. And then what you needed? What else you needed? Favorable wind. Means Vedas, the scriptures, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Chaitamrita, ये जो शास्त्र हैं कैसे हैं? ये अनुकूल जो हवा बहती है उसके जैसे हैं. जब आपको किस दिशा में जाना है और हवा सामने से आ रही तो कैसा होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा. लेकिन स्क्रिप्चर्स कैसे हैं? अनुकूल हवा है, फेवरेबल विंड, मतलब आपको इस दिशा में जाना है और हवा भी इस दिशा में बह रही है तो क्या होगा? बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. तो जब हमको ह्यूमन शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, तब हमको क्या करना है? यूटिलाइज करना है. कैसे? किसी एक गुरु के आश्रय में, शेल्टर में, उसके गाइडेंस में हमको इन स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को पढ़ना है और समझना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना है. तो तब जाकर ये जो मटेरियल, ये जो भौतिक जगत है, इसका जो साइकिल जो है मृत्यु और जन्म का, जिसमें हम कष्ट भोग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, इसे हम बच नहीं सकते हैं. भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुना. भगवान कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्मा से ले, ब्रह्मा जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उस ब्रह्मा से लेके चींटी तक या कोई एक छोटा सा बहुत कीड़ा है, इंसेक्ट्स, अ वर्म इन अ स्टूल, सब लोग क्या होते हैं? पुनरावर्ती न अर्जुना. एवरीवन हैज टू टेक बर्थ again and again and again. And जातस्य ही ध्रुव मृत्यु. जिसकी बर्थ हुई है उसके लिए क्या होगा? बिगिनिंग अगर है तो एंड भी होगा. ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही है. शुरू है तो अंत होगा. जो जन्म हुआ है तो डेथ होगी, और डेथ हुई है तो होगा ही. यू कैन नॉट से देयर इज नो रीबर्थ. आपको नहीं पता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है. तो क्या होगा? बर्थ लेते जाएंगे, वो साइकिल चलते रहेगा. क्योंकि यू कैन नॉट सी द आइडियल. व्हेनेवर यू गेट बर्थ, you will perform some action, then result you will get, reaction you will get, good or bad. तो वो चलते रहेगा. यू कैन नॉट स्टॉप दैट. तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको उसको स्टॉप करना है. और ये कब कर सकते हैं? केवल मनुष्य शरीर में. तो भगवान कहते हैं अगर इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, मनुष्य शरीर, एक शुद्ध भक्त जिसको ये शिक्षा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, और शास्त्र का अध्ययन अगर हम नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं any human being who has achieved these excellent facilities of human life but does not cross over the material ocean is to be considered the killer of his own self. मतलब वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है, खुद को मार रहा है. खुद को मतलब शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है. शरीर जिसकी वजह से जीवित है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल. तो एक आपको अवसर मिला है, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से? अगर इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम उसको खो देंगे. और जब तक हम सुनेंगे नहीं इस सब्जेक्ट मैटर को, हमको क्या लगेगा? हमको सिचुएशन इमरजेंसी फील ही नहीं होगी. क्या लगेगा? कैसा लगेगा? अभी तो बहुत समय है ना. लोग यही कहते हैं कि अभी क्या, अभी ये सब क्यों कर रहे हो, बाद में करना. तो किसने देखा है बाद में? वो जो लोग ऐसा कहते हैं बाद में करना, क्या बाद में वो खुद कर पाते हैं? उनसे खुद से भी नहीं होता है. ये हम देखते हैं ना घरों में. एटलीस्ट इंडिया में तो हम देखते हैं कि घरों में, भाई ठीक है, विदेशों में ओल्ड एज होम्स होते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग सब हो जाते हैं. लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं ना, अपनी दादी, दादा, नाना, नानी, इनको देखते हैं, जो बूढ़ी एज अवस्था जो उनकी है, ओल्ड एज, उसमें ये सब कर पाते हैं? सुबह जल्दी उठ के नहा पाएंगे? हम तो कहते हैं सुबह जल्दी उठ के कभी एक बार मंदिर जाओ, 6:30 बजे मंगल आरती होती है. उनसे ऐसा होगा? एक जगह बैठ के माला जप कर पाएंगे? एक जगह बैठ के पढ़ पाएंगे? दिखता नहीं है ढंग से, है ना. तो कई सारी इस तरह की कंडीशंस रहेंगी. तो जब तक हम सुनेंगे नहीं इस सब्जेक्ट मैटर को, क्या होगा? हम इल्यूजन में ही रहेंगे, हमको इमरजेंसी फील ही नहीं होगा उसका.
तो इसलिए शास्त्र कहता है कि गुरु मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्योर भक्त है, जो आपको इस आध्यात्म के मार्ग पर ले जा सके। ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढना चाहिए? जैसे आपके सर में आग लगी हो और आप पानी ढूंढते हो, ऐसे हमारी जो है तत्परता होनी चाहिए। तो अभी समय हो गया है, हम एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। इल्यूजन से कैसे बचें? तो पहले तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमको मालूम पड़ा कि भाई इल्यूजन है ना, क्योंकि हमको तो यही नहीं पता चलता है कि वाकई में हमको कष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। हम कष्ट को क्या करते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। भाग सुख के लिए रहे हैं, बहुत बहुत थोड़ा सुख मिल रहा है। शास्त्र बताते हैं कैसा सुख मिलता है। जैसे एक डेजर्ट में, यू आर इन अ डेजर्ट लुकिंग फॉर वाटर टू क्विंच योर थर्स्ट एंड यू गेट वाटर, लेकिन कितना क्वांटिटी? यू गेट अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर, ऑफ द वाटर। कितना आप सेटिस्फाई होंगे? प्यास मिटेगी या और बढ़ जाएगी? और बढ़ जाएगी। नहीं मिल रहा तब तक ठीक था, लेकिन सपोज कभी कभी बहुत भूख लगी होती है ना, तो हम देखते हैं ना कि ये क्या कहते हैं उसको, स्टार्टर्स का क्या काम होता है? एपेटाइट को बढ़ा देते हैं ना। तो वो आप खाए तो क्या लगता है, अरे अब तो बहुत भूख लग रही, फटाफट लेके आओ, है कि नहीं? तो वैसे ही आपको बहुत प्यास लग रही है, तो नहीं मिला तब तक ठीक था, लेकिन एक बूंद पानी आ गया जीवा पे तो क्या लगेगा कि नहीं अब तो और चाहिए। तो ये सुख हमको वैसे ही मिलता है। कितना मिलता है? इतना प्रयास करने पे मिलता कैसा है? एक पानी की बूंद के समान। तो हम उस दुख को क्या करते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं। हाँ भाई तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आनंद जो आत्मा है उसका नेचर कैसा है? आनंदमयोभ्यासात। आत्मा हमेशा आनंद में रहने वाली है। दुख का तो नाम ही नहीं है। नाम और निशान कहते हैं, नाम नहीं है और निशान भी नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं वैकुंठ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतना दुख मिलता है, उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको भी एक पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं। ये भी एक इल्यूजन है। तो इल्यूजन से कैसे? पहले तो ये अपने आप को पहले हम स्वीकार करें कि भी मैं इल्यूजन में हूं। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि जो सोया है उसको उठाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप उठा ही नहीं सकते हो, वो उठेगा ही नहीं कभी। तो कम से कम स्वीकार तो करें कि हाँ भाई मैं इल्यूजन में हूं, मतलब मेरे में ये कमी है। तो शास्त्र कहता है हमारे अंदर 4 कमी है। कितनी कमी है? 4 तो है ही, बाकी बहुत जो है वो तो है, लेकिन 4 क्या कमी है? इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस परफेक्ट है नहीं। तो जब सेंसेस परफेक्ट नहीं रहेंगे, मतलब किसी को चश्मा देखने को चाहिए, कितनी देर का दूर तक का हम देख सकते हैं, कितनी तरह की जो आवाज हम सुन सकते हैं, एक लिमिट है ना। और इस तरह का क्या है? इल्यूजन है। क्यों है? क्योंकि सेंसेस हमारी परफेक्ट नहीं है। तो पहला फॉल्ट क्या हो गया? इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा क्या हुआ? इल्यूजन में हम रहेंगे। तीसरा क्या हुआ? जब इल्यूजन में कर रहेंगे तो क्या होगा? हम मिस्टेक करेंगे ना। जब इल्यूजन में रहेंगे तो क्या होगा? मिस्टेक होगी, कुछ ना कुछ गलती तो होगी होगी। जैसे आप देखते हैं रेलवे ट्रैक, ऐसा लगता है दूर जाके मिल रहा है, लेकिन मिल रहा होता है क्या वो? या फिर you touch something which is hot, very hot, and then you touch another thing which is very cold that time. या फिर खूब कोई बहुत ठंडी चीज को आपने हाथ लगाया, उसके बाद उससे कम ठंडी वस्तु को हाथ लगाओ, कैसा लगेगा? वो गर्म लगेगी। वो गर्म है नहीं। ये क्या है? मतलब हमारी सेंसेस कैसी हैं? इम्परफेक्ट है। आप बहुत कोई मीठी चीज खाओ, उसके बाद थोड़ी कम मीठी चीज खाओ, तो क्या लगेगा? वो एकदम फीकी लगेगी। लेकिन पहले कम मीठा खाओ तो मीठा लगेगा, उसके बाद दूसरा जो ज्यादा मीठा है वो खाओ तो टेस्ट आएगा। तो ये क्या है? हम गलती कर देते हैं ना। तो क्योंकि हम इल्यूजन में है। इल्यूजन में क्यों है? क्योंकि सेंसेस परफेक्ट नहीं है। तो 3 चीज। और जब गलती करते हैं, when we commit mistakes, we want to cover it up, so then we cheat. क्योंकि हम थोड़ी चाहेंगे कोई हमारी गलती से सामने किसी के आए, तो हम चीट करेंगे लोगों को। वही चीटर्स की कैटेगरी में मोस्टली, सब नहीं लेकिन साइंटिस्ट उसी में आते हैं। यही यहाँ पे कहा गया है ना, सोफिस्टिकेटेड थ्योरीज वो यूज करते हैं। थ्योरी स्टिल वो थ्योरीज है, लॉ नहीं है।
फिर भी उसको रियलाइज करके कई सारी बातें करते हैं, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल, दिस दैट और सो मेनी थिंग्स। हम यूनिवर्स का ओरिजिन का पता लगाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं इफ यू हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, तो इम्परफेक्ट सेंसेस है, उससे आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे वो परफेक्ट हो सकेगा क्या? आप ही बताओ। यूज योर लॉजिक, आपका थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। आपकी खुद की सेंस कैसी है? इम्परफेक्ट है, तो उससे आप कुछ भी बनाओगे वो कैसा रहेगा? परफेक्ट तो होगा नहीं। कुछ जानकारी मिलेगी लेकिन परफेक्ट जानकारी कभी नहीं मिलने वाली। तो इन्होंने कहा इल्यूजन से बाहर कैसे आए? तुम्हारी सेंसेस कैसी हैं? कब परफेक्ट होगी? कब परफेक्ट होगी? हाँ, और लोग कुछ भी अपना इनपुट थोड़ा दीजिए। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, परफेक्ट कभी होगी? हाँ, क्या बोले? परफेक्ट हो जाएगी? कभी नहीं होगी। हाँ, यस, कभी नहीं होगी। तो फिर तो हम इल्यूजन में ही रहेंगे। क्या होगा? हमेशा इल्यूजन में रहेंगे। लेकिन अर्जुन भी इस तरह के एक मोह में फंस गए थे ना, तो हमको क्या चाहिए? अर्जुन के साथ तो भगवान थे, मोह दूर किया, लेकिन हमारे साथ कौन है? स्क्रिप्चर्स है ना। मैंने पिछली क्लास कहाँ दी थी? हाँ, संडे को मैंने जो क्लास दी थी संबंध अभिधेय प्रयोजन, उसमें मैंने बताया था कि भगवान कृपा करके जो स्क्रिप्चर्स है हमारे लिए दिए हैं। तो हमको क्या चाहिए? हम तो इल्यूजन में रहेंगे क्योंकि हमारी सेंसेस कैसी इम्परफेक्ट है। तो हमको क्या चाहिए? शास्त्र चक्षु। व्हाट वी नीड? शास्त्र चक्षु। अपनी आंख से तो हम क्या देख पाएंगे? अपनी आंखें तो खुद को नहीं देख पाती है, आपकी एक आंख दूसरी आंख को देख पाती है, और हम घमंड करते हैं अपनी आंखों पे ही। अब अपनी खुद की भौं नहीं देख पाते हैं। आई अपनी देख पाते हो? देखो, कोशिश करो, है ना। हमको किसी माध्यम चाहिए, आईना चाहिए ना, वी नीड मिरर। तो वैसे ही हमको क्या चाहिए? शास्त्र चक्षु, और उसके लिए भी माध्यम चाहिए। कौन चाहिए? वी नीड अ गुरु। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये जो श्लोक अभी पढ़ा ना हमने कि बोट है और गुरु है और वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, तो हम अपने खुद के बल से इल्यूजन को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। वो क्लियर है? सो बट व्हेन वी चैंट, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या होता है? हम सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आने से जो इंटरेस्ट जनरली हमारा होता नहीं है शास्त्र अध्ययन करने में, है ना, तो वो हम रीड करेंगे, भक्तों के संग में उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करेंगे, तो क्या होगा? इल्यूजन से बचे रहेंगे, रियलिटी को समझ पाएंगे। कब तक? तो ऐसा एक और एग्जांपल आता है, जिसे लोहा होता है। क्या होता है? लोहा, आयरन रॉड है, you put that iron rod in the fire, what will happen? After some time it will become red hot like fire only, it will act like a fire only, but कब तक? as long as you remove it from fire, then again will get cool down. लेकिन जब तक फायर के साथ है तब तक क्या रहेगा? वो फायर का काम करेगा। सिमिलरली when we are chanting every day, we are reading every day, we are associating devotees every single day, we will be out of illusion. जैसे ही छोड़ा नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ? हम illusion। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण एंड माया, माया मीन्स विच इज नॉट, मतलब इल्यूजन। कैसे हैं? साइड बाय साइड, आइदर यू आर विथ कृष्ण, और अगर आप कृष्ण के साथ नहीं है तो देन यू आर इन illusion. Choice is ours. Got it? Okay. Any other question? So how many of you chanting every day? At least one round. कुछ यहाँ उठाऊं नहीं उठाऊं? कुछ पूछूंगा नहीं। तो अच्छा, कोई शुरू जब क्लास स्टार्टिंग मैंने पूछा था, अभी कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में आया है? आप केवल फर्स्ट टाइम आए, बाकी लोग रेगुलर है भागवतम क्लास में, बट स्टिल नॉट चैंटिंग।
क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आप जप नहीं कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट आप ये चैंट करेंगे, आप खुद समझेंगे कि हाँ मैं इल्यूजन से बाहर हूं, आप खुद फील करेंगे। तो आप करिए अगर नहीं कर रहे हैं तो, और फिर भी नहीं कर रहे हैं, कुछ शंकाएं हैं तो पूछिए, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली रिजेक्ट मत करिए। ओके, विल एंड हियर, 9:15 बज गए हैं। अभी प्रसाद है ना, डिनर प्रसाद रहेगा।